Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class student. Today date is 4th January 2022 and I am teaching you chapter number 17 and name of the chapter the earth and sky. So student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So student, in the previous video we discussed that our planet is known as a special planet. Okay, there are other planets also, but our planet Earth, that is planet, is known as a special planet. So what is the reason for that? The reason is that this is the only planet on which life is possible, because water and air is present in this planet. Okay, and what are the conditions required for the living organisms? All these conditions are present on this planet. Okay, so now and after that, so yesterday I told you that the learning objective of this chapter are what makes our earth special. So the first learning objective, why our earth is known as a very special planet, this we have already discussed in the previous video. So very small recapitulation we will do, and then we will continue with the second learning objective of this chapter, that is what a solar system is. Okay, so in yesterday video student I discussed with you, when we are talking, when you see the picture of your planet in your book, it is given on page number 90, or if you have seen the globe of our planet, that is earth, so in that you will observe that maximum portion is blue and few patches of green and brown color you will see. So what is the reason for that? Reason is that 72% of the surface of the earth is covered with the water, and in rest of the 28%, that is only the land. And student, when we are talking about the land, then again on the surface of the earth all the land is the same. So again the answer is no, because we see hills, we some areas we see mountains also, in some areas we see valleys also, in some area we see plateaus also. Okay, in some area we see desert also. Is it clear? So on the surface of the earth the land is not the same everywhere. Is it clear? And some places are plain. So this I have already shown you with the help of the picture also in the previous video. So I hope this is very clear to all of you. Now if someone asks you, अगर बेटा अब आपसे कोई ये पूछता है कि क्या अर्थ के सरफेस पे सब जगह लैंड एक जैसा है, तो आपका आंसर क्या होगा? नो। और उसके पीछे देखो साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए हमारी। ईवीएस क्या आगे चल के ये आपका साइंस सब्जेक्ट बनेगा। तो यू डोंट हैव टू क्रैम द थिंग्स, आपको अपने ऑब्जर्विंग से, अपने थिंकिंग स्किल से सारी चीज़ों से आंसर्स को फाइंड आउट करना है, जिसको हम लोग साइंटिफिक टेम्पर्स बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द साइंटिफिक टेम्पर। ये नहीं कि अगर किसी ने बोल दिया आपने बस रट लिया। ठीक है, आपको अपने लॉजिक्स लगाने हैं। ठीक है, सो तो मैंने जैसे बोला आपको कि अर्थ के सरफेस पे लैंड एक जैसा नहीं है। तो आप लोग कई बार गए होंगे, या तो समर वेकेशन में कभी हिल स्टेशंस पे घूमने गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वाराणसी में लैंड बिल्कुल प्लेन है। और स्पेशली आप लोग तो आर्मी स्कूल से बिलोंग करते हो, मैक्सिमम बच्चों के पेरेंट्स कहाँ हैं? आर्मी फैमिली से बिलोंग आप लोग करते हो। तो आप लोग के पेरेंट्स की आफ्टर 2-3 ईयर्स योर फादर माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आपके पापा की ट्रांसफ़र होती जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बेटर है समझना कि
इंडिया जो अर्थ के सरफेस पे जो लैंड है वो एक जैसा नहीं है। कभी आप लोग की पापा मम्मी की पोस्टिंग जम्मू अगर आ जाती है, आप लोग जम्मू में पढ़ते होगे, तो वहाँ आपको बहुत हाइट वाले माउंटेन्स देखने के लिए मिलते होंगे, बहुत हाइट वाले माउंटेन्स। वाराणसी में आज हो, आप प्रेजेंट टाइम आपकी पोस्टिंग आपके पापा की है, तो यहाँ लैंड कैसा है, प्लेन है। बहुत से बच्चे राजस्थान पोस्टिंग चले जाते हैं, वहाँ क्या है, डेजर्ट एरिया है, ठीक है। महाराष्ट्र है, वहाँ क्या प्लेट्यूज हैं। इज इट क्लियर? अगर आपकी हिमाचल में पोस्टिंग है तो वहाँ वैलीज हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ऑब्जर्व करोगे अपने सराउंडिंग्स में कि यस इट इज ट्रू टू से दैट everywhere on the surface of the earth the land is not same. There is a difference in the land on the surface of the earth, ठीक है। so these things we have already discussed in the previous video. अब देखो, now we will discuss the second learning objective of this chapter, that is what a solar system is, ठीक है। now आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ एयर, ठीक है। हमारे अर्थ के चारों तरफ एक लेयर ऑफ एयर है एंड दिस इज नोन एज स्टूडेंट एटमोस्फेयर। इज इट क्लियर? नोट डाउन और अंडरलाइन इन दिस इन योर बुक because this is a very important point and many times this question asked in the examination that define or explain atmosphere. So what is this? This is the air around our planet. हमारा जो planet अर्थ है ना, इसके चारों तरफ जो हवा है ना, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमोस्फेयर बोलते हैं। आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, यू कैन नोट डाउन इन योर बुक विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल। द अर्थ इज earth is surrounded by a layer of air. Is it clear? This is called its atmosphere. Okay, so how the life is possible on this planet? So how the life is possible? So life is possible because land is also present, water is also present, air is also present on this planet, and this is the reason life is possible. क्योंकि लैंड नहीं होता तो प्लांट्स नहीं होते, as we have earlier discussed in previous chapter also, when we are talking about the living organism. So in living organism हमने डिस्कस किया था, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बट the plants are the only producers, planty producers, and they can prepare their own food in the presence of a sunlight. And we human beings and animals, we all are directly or indirectly depends on plants for our food, ठीक है। तो अर्थ पे लाइफ इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि यहाँ पे लैंड भी है, क्योंकि जितनी भी क्रॉप्स होगी उसके लिए सॉइल चाहिए ना। लैंड नहीं होता तो क्रॉप्स लगते, पेड़ होते नहीं होते। लैंड भी है, वाटर, सो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट वाटर? नो। सो आंसर इज व्हाट? नो। सो वाटर इज आल्सो प्रेजेंट। देन नेक्स्ट इज एयर, because as we know that our living gas is oxygen. If there is no oxygen, then no living being will survive on this planet. So land, water, air, all are present on the earth. All are present on the earth. That is the reason. That is the reason
life is possible. ओके, सो अर्थ पे ही लाइफ क्यों है? बिकॉज लैंड, वाटर, एयर, all these are present. That is the reason life is possible on the planet that is earth. Okay, now next we will discuss next important thing we will discuss, that is the distance of, next important thing which we will discuss in this chapter is the distance of sun from earth. Next important thing is that the distance of sun from earth. So the distance of the sun from the earth is a right distance. ठीक है, that is the reason our planet is not very hot or it is not very cold. ठीक है, देखो सारी चीज, सोर्स ऑफ लाइट और सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन ही है. अगर सन की लाइट नहीं होती, ठीक है, तो प्लांट्स जो जितने भी हैं दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड. और प्लांट्स अगर फूड प्रिपेयर नहीं करते तो अदर और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता. तो दैट इज द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ. रीजन we say that the distance of sun from the earth, that is the right distance. Okay, due to this our planet is not very hot or our planet is not very cold. By chance, if the sun is very close to the earth, then what's happened? Due to the heat of the sun, क्योंकि सन से आपको लाइट भी मिल रही है और सन से हीट भी मिल रही है. इफ द सन इज क्लोज टू द अर्थ, देन ड्यू टू द एक्सेस हीट ऑफ द सन ऑल द थिंग्स विल डिस्ट्रॉय. ये आप लोग पेरिश वर्ड यूज किया है. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ वुड पेरिश. पेरिश मीन्स नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना. ठीक है, दिस वर्ड इज यूज्ड इन द बुक पेरिश. इट मीन्स खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना. ठीक है, सो अगर सन अर्थ के बहुत क्लोज होता तो इतनी ज़्यादा सन के हीट से सारी चीज़ें क्या होती? अर्थ के सरफेस पे डिस्ट्रॉय हो जाती. तो अगेन लाइफ पॉसिबल होती? सो आंसर इज नो. इन द सेम मैनर इफ द सन इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ, अभी क्या है, सन एकदम राइट डिस्टेंस पे आते. अगर सन अर्थ से और ज़्यादा फार अवे होता तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या होता? बहुत कूल होता. टेम्परेचर क्या होता? बहुत कूल होता. अगर टेम्परेचर बहुत कूल होता तो भी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, सनलाइट अगर ज़्यादा नहीं होती तो. ठीक है, सो इससे भी प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ पॉसिबल होती हमारे प्लेनेट पे. सो अगेन द आंसर इज नो. इज इट क्लियर? Again the answer is no. So you must understand, I just repeat it for you. ठीक है, now we are discussing the distance of sun from earth. So sun का distance जो अर्थ से है वो बिल्कुल right distance है. अगर अर्थ से सन का डिस्टेंस अर्थ बहुत क्लोज होती तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई होता या बहुत हॉट होता, और ड्यू टू द हीट ऑफ द सन ऑल द थिंग्स विल डिस्ट्रॉय, तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती. इफ द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज वेरी वेरी फार अवे, तो फिर क्या होता? अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर होता, अर्थ क्या होती? बहुत कूल होती. एंड ड्यू टू दिस आल्सो लाइफ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स विल नॉट पॉसिबल on the surface of the earth. ठीक है, next thing which we'll discuss, that is the solar system.
सो सन है, ठीक है। व्हाट इज ए सन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, सन इज ए स्टार, सन इज ए स्टार, ठीक है। सन क्या है बेटा? सन इज ए स्टार, इट हैज इट ओन लाइट एंड हीट आल्सो, ठीक है। सो सन क्या है? स्टार है, इसमें बहुत ज्यादा लाइट भी प्रोड्यूस होती है और हीट भी, ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द गैसेज जो कंटिन्यूस बर्न कर रही है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है और बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो सन क्या है? स्टार है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स क्या है? दीज आर द बॉडीज विच टेक राउंड ऑफ द स्टार, these are the body which are taking around of the star, मतलब ये स्टार के चारों तरफ क्या कर रही हैं? घूम रही हैं, मूव कर रही हैं, ठीक है। तो सन क्या है? स्टार है। और प्लैनेट्स क्या है? these are the bodies which are moving around the star. So now the question arises here, when we are talking about the planets, sun is a star, इट हैज इट्स ओन लाइट, इसकी लाइट है क्योंकि बर्निंग ऑफ गैसेस से प्रोड्यूस हो रही है, और हीट है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, प्लैनेट्स हैव लाइट? सो आंसर इज नो। प्लैनेट्स हैव हीट? सो आंसर इज नो। इज इट क्लियर? प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती, प्लैनेट्स पे जो लाइट है वो किसकी है? वो स्टार की लाइट होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लैनेट्स की अपनी लाइट होती है तो आप आंसर क्या बोलोगे? नो बोलोगे। प्लैनेट्स की लाइट नहीं होती, स्टार की लाइट्स होती है। इज इट क्लियर? सो क्योंकि स्टार में जो गैसेस हैं और इनके बर्न होने से कंटिन्यूअस लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो हियर वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द सोलर सिस्टम। अगर हम लोग अपने यूनिवर्स में बात करें, पूरे यूनिवर्स के, तो मिलियंस ऑफ स्टार है, मिलियन विलियंस ऑफ स्टार्स हैं सन की तरह। जैसे सन एक स्टार है तो सन की तरह मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं यूनिवर्स में, लेकिन दे आर सो फार अवे। रात में आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, इन द डार्क व्हेन देयर इज नो सनलाइट, इन द डार्क आप लोग को ट्विंकल ट्विंकल लाइट दिखती है। तो ये सब लाइट किसकी है? स्टार्स की है। ये सारी की सारी लाइट्स किसकी है? स्टार्स की है। लेकिन ये इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं हमारे प्लेनेट से कि देयर लाइट इज नॉट कमिंग ऑन आवर प्लेनेट। इनका डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि इनकी लाइट हमारे प्लेनेट पे आती नहीं। सो एट द टाइम ऑफ ए नाइट व्हेन देयर इज नो सनलाइट, सो ये ट्विंकल करते हुए चमचमाते स्टार आप लोग को स्काई में दिखते होंगे, क्लियर स्काई में। आपने नहीं ऑब्जर्व किया होगा तो आप कभी डार्क के समय स्काई में देखिएगा, ये चीज़ ऑब्जर्व कर लीजिएगा, क्योंकि हमें रटना नहीं है। हमें देखना है कि सर ने बोला है कि स्टार रात में दिखते हैं क्लीन स्काई में, तो आप देखिएगा और फिर बोलिएगा हाँ सर ने सही बोला था। और उसका रीज़न ये है कि दीज स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम आवर प्लैनेट अर्थ, so their light does not come on the surface of our planet. So that is the reason at the time when it is dark, no light present, so at that time we can see these stars in the sky. तो रात के समय हम इन स्टार को कहाँ देख सकते हैं? स्काई में देख सकते हैं, ठीक है। और जब हम लोग प्लैनेट्स की बात करते हैं बेटा, तो देयर आर 8 प्लैनेट्स है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। It is try this, it is given in page number 91. Can you name of the ड्राफ्ट प्लेनेट? तो इसका नाम रखा प्लूटो, ठीक है। इसे ड्राफ्ट प्लेनेट की कैटेगरी में रखा गया है। पहले हम लोग 9 प्लैनेट्स लेके चलते थे, बट इट इज़ अ वेरी स्मॉल, इसका साइज बहुत कम है, तो डैट इज द रीज़न प्लूटो को क्या किस में रख दिया? ड्राफ्ट प्लेनेट में रख दिया। अब प्रेजेंट टाइम में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लैनेट्स, तो 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो अब सोलर सिस्टम में मेन क्या है? आपका सन है, क्योंकि मैंने कहा था आप लोगों से प्लैनेट्स क्या है? ए नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द
that revolves around the sun is called it planets. तो अब मेन क्या है, सन है, ठीक है. ओके, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू स्टूडेंट.